Good evening, Sana. Now I will start the class. So, previously we have studied about the structural organization in animals, and what we have studied about the epithelial cells. Yeah? And then after some of the points of connective tissues. Now today we are going to study directly about the frogs because the muscular tissues or the nervous tissues, these two things we will cover by studying the nervous chapter and muscles chapter. So these will be covered. Now, frogs, which is basically in the syllabus of this chapter. So I'm going to cover this one first. Okay, yes. So common Indian names of frogs which you have to learn. This one is the most important because it has been asked in many of the entrances exam. Okay, what is common Indian frogs ka scientific name? So the scientific name of common Indian frogs are Rana tigrina. In some of the school, they provide practicals for this frog also. So what are these frogs? They are cold-blooded animals. Means they have the ability to change according to the body temperature, which is defined as poikilotherms. Poikilotherms क्या होते हैं? They have the ability to change their body temperature. Environment के हिसाब से अपने आप अपने body के temperature को क्या करते हैं वो change कर लेते हैं. Then comes the classification. पहले इतना देख के फिर क्लासिफिकेशन में क्या है, किस किंगडम में बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, किस फैमिली के बिलोंग करते हैं, किस जीनस को बिलोंग करते हैं. So main point here is, once I think this one has been asked order, कि the frog Rana tigrina belongs to the order Annelida. So you have to learn the classification, like which kingdom does it belong, what is the phylum, what is the class, there is subphylum also, then what is the family, again genus and species name, ultimately you have to learn. So kingdom Animalia, phylum Chordata, class is Amphibia, and order is Annura, family Renidae, and genus is Rana, and species is Tigrina. Tigrina in India basically, and there are many other species of frog which are found in different countries. So India में ज़्यादातर राना टिग्रीना को ही देखा गया है. That is why we are going to study the basic features and morphology, physiology of this राना टिग्रीना only. Then अलग पॉइंट ये है कि पहला तो ये कि these are cold blooded. The second point is camouflage. Camouflage मतलब they have the ability to change their body color. ठीक, according to the environmental situations they are facing, they change their color of the body. ठीक, अगर मान लो कोई एनिमी वगैरह आ रहा है तो दे ट्राई टू चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट पॉइंट. लाइक अगर ग्रीन है तो और डार्कर ग्रीन या लाइटर ग्रीन में कन्वर्ट कर लेंगे जस्ट टू हाइड फ्रॉम द एनिमीज. ओके, देन दे परफॉर्म बोथ. एस्टिवेशन ऑल्सो परफॉर्म करते हैं, हाइबरनेशन भी करते हैं. सो सी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं. बस दिस फ्रॉग ये स्पेशल है. ठीक है, इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है. विंटर स्लीप में भी जाता है एंड समर स्लीप में भी जाता है. तो जब विंटर स्लीप में जाता है और तब क्या हो जाता है, लंग से तो रेस्पायर करेंगे नहीं, दे यूज स्किन फॉर रेस्पिरेशन. एंड ऑल्सो इन द समर स्लीप जब भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंग्स इन लोग का क्या हो जाता है, रेस्टिंग पोजीशन पे, तो दे रेस्पायर थ्रू द स्किन. ओके, नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी कैसी है, इनकी स्किन यू मस्ट हैव सीन द फ्रॉग. अगर पकड़ने की कोशिश की होगी देन इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड. स्किन क्या होता है, बहुत स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है. और क्यों, क्योंकि जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है ना उसपे म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है कंटिन्यूएशन में. तो इस वजह से क्या होता है, इनका स्किन स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है. किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से. अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ये वाला, कि रहते तो पानी और लैंड दोनों पे, लेकिन पानी को पीते नहीं है. दे डोंट ड्रिंक वाटर, दे अब्सॉर्ब इट थ्रू देयर स्किन. क्यों, क्योंकि स्किन इन लोग का क्या हमेशा मॉइस्ट रहता है एंड म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, म्यूकस वाटर को अब्सॉर्ब करता रहता है एंड वाटर अब्सॉर्प्शन अल्टीमेटली क्या होता है, स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर इंटैक्ट हो जाता है. ठीक, अब देखो डॉर्सल साइड फ्रॉग का कैसा होता है, वेंट्रल साइड, मतलब कि ऊपर साइड कैसा है और नीचे कैसा है. तो वी विल सी फ्रॉम द फिगर ऑल्सो. देखो ऊपर क्या है, ऑलिव ग्रीन कलर है, आई एक साइड दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेयर्स यानी कि नॉस्ट्रल्स दिए हुए हैं, माउथ ऊपर की तरफ है, टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है. ठीक, और नीचे की तरफ क्या क्या है, नीचे की तरफ देखो कलर चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्मली पेल हो जाते हैं. और ऊपर क्या है, इरेगुलर स्पॉट्स भी हैं. देखो इसके फिगर में ये नीचे की तरफ क्या है, नीचे इफ यू विल सी अपसाइड डाउन करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम इवनली येलो कलर या पेल येलो कलर, या यू कैन सी कि वेरी लाइट डार्क लाइट ग्रीन कलर भी हो सकता है. कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन. ठीक है, देन बॉडी किसमें डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक में. नेक और टेल एब्सेंट है. देखो फिगर में भी देखो, हेड है ये और ये ट्रंक है. इसमें देखो ना नेक दिख रहा है और ना कोई टेल दिख रहा है, बट टेल इज फाउंड इन द लार्वल स्टेजेस.
ठीक है। टेल इज फाउंड कहाँ पे, लार्वल स्टेजेस में, इन लार्वल स्टेजेस। और लार्वल स्टेज क्या होता है इसका, टेडपॉल लार्वा होता है। तो जो टेडपॉल लार्वा होता है ना उसमें टेल देता है। टेडपॉल लार्वा इज हैविंग द टेल्स बट स्लाइटली इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ये टेल क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है एडल्ट के फ्रॉक तक आते आते। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी, देन वी विल सी द एनाटॉमी। लेट अस मूव टू द स्लाइड आल्सो। फ्रॉग्स क्या हैं, दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वी नो, because all the amphibians category have the ability to live in both land and water. लैंड पे वो लोग बेसिकली अपना रहते हैं बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज व्हाई दे आर एम्फीबियंस। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टेरिना। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, दिस विल नेवर बी आस्क्ड कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रॉग्स आर वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, 2600 स्पीशीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 4 स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स आर मेनली फाउंड। कौन कौन सा है, राना टिग्रीना है, राना साइनोफिलिक्टिस एंड राना टेम्पोरेरिया। एक मिनट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है राना टिग्रीना बिकॉज इंडियन रीजन में तो यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। राना साइनोफिलिक्टिस क्या है, राजस्थान यूपी और एमपी में दिखता जरूर है बट बहुत कम अमाउंट में, ज्यादातर राना टिग्रीना ही दिखा जाता है। देन आता है राना टेम्पोरेरिया, ब्रिटिश फ्रॉग कहलाता है। ब्रिटिश फ्रॉग क्यों कहलाता है, बिकॉज दिस वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। ओके, देन हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, राना टिग्रीना मोस्ट कॉमन फ्रॉग है, इंडिया में पाया जाता है। बुल फ्रॉग कहलाता है, क्यों, क्योंकि इसका साइज भी लार्ज है और लाउड कॉल है। Loud call means whenever they have to go into the reproduction process. So frogs, basically male frogs, give a sound, a sort of sound. जिसके basically टर जो वाला sound होता है ना. So this is a call for female frog to come near the male frog. So ये राना टिग्रीना में क्या है, loud होता है in comparison to other species of frog. It is found in or near freshwater marshes, beaches, ponds, shallow water bodies. It has various reasons to let amphibians life, such as it can respire both through skin and lungs. Frog breathes in water and spends its early life in water. It is unable to drink water and absorb it through the skin, hence it lives near the water. It gets its food from live insects, worms, mostly near the water, spiders, mostly near the water. अब देखो क्या क्या बोल रहा है कि एम्फीबियन लाइफ को रिस्पायर करने के लिए उसके पास क्या क्या रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो है क्योंकि इसको जो ब्रीडिंग प्रोसेस है यानी कि रिप्रोडक्शन उसको पानी में ही करना है, दैट इज व्हाई इट लिव्स नियर द एरिया ऑफ वाटर। ओके, देन वो स्किन और लंग्स दोनों रिस्पायर करता है, तो उसके पास दोनों रीजन है लैंड पे रहने के भी सुटेबल है, वाटर में रहने के भी सुटेबल है। अगेन जो वो पानी को पी नहीं पाता, तो जब उसको रिस्पायर करने के लिए स्किन के आसपास वाटरी चीज होनी चाहिए तब तो वो रिस्पायर करेगा, सो इसीलिए वो वाटर एरिया के पास रहता है। लास्ट वन, फूड जो इंसेक्ट्स और वर्म्स जो वाटर के एरिया जल्दी मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू लैंड एरियाज, इसलिए दे आर चूजिंग द लिविंग एरिया अपना नियर द वाटर बॉडीज। ओके, समटाइम्स इट हैपेंस कि जब ज्यादा बारिश हो जाती है किसी भी एरिया में तो सड़कों पे भी कभी कभी फ्रॉग्स दिख जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो नदी का पानी है या एरिया छोटा पड़ जाता है, या फिर कुछ फ्रॉग्स नदी में से क्या हो जाते हैं निकल के, ये वाटरी एरिया तो है ही, तो वो लोग एक दूसरे की तरफ घूमने शुरू कर देते हैं। That is why sometimes we can see frogs during a heavy rainfall time. Okay. Next one is important habitats. क्या क्या करता है, feeding. Feeds on insects, worms, spider. अभी हमने पढ़ा carnivorous है. The prey is captured with the help of tongue. कैसे कैप्चर होता है, टंग के उससे। This one you can mark is as important. Prey capturing का process. Then locomotion कैसे होता है, 3 टाइप का लोकोमोशन होता है, स्विमिंग भी कर सकते हैं, लीपिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं। वॉकिंग कैसे करेंगे, लिम्ब है उनके पास, उसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मूवमेंट होता है लिम्स का, जैसे वी यूज टू वॉक। ओके, देन लीपिंग क्या करते हैं, वो उछल के जाते हैं, ठीक है, 1 by 1 स्टेप से उछलते हैं। एंड स्विमिंग ऑफ कोर्स, जब पानी में है तो स्विमिंग इज वन टाइप ऑफ लोकोमोशन इज आल्सो देयर। Now swimming, leaping and walking. Any other important point in this? Backward stroke of hind limb pushes the body forward in this. Okay, कैसे animal swim करते हैं? This is not important. Breeding कैसा होता है? Mainly rainy season में breeding होता है and male frog ही female frog को calling करते हैं, means कि they create a loud sound to call the female frog or to attract the female frog towards themselves. जब भी copulatory movement होता है पहले मेल फ्रॉग का इन्वॉल्वमेंट होता है, आफ्टर देन फीमेल फ्रॉग का इन्वॉल्वमेंट आता है। एंड आफ्टर द कॉपुलेटरी मूवमेंट दे रिलीज देयर एग्स एंड द स्पर्म एट द सेम टाइम इन द वाटर। और इतने अमाउंट में रिलीज होता है, सो मेक श्योर करने के लिए कि ये इन दोनों को क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो और इन दोनों से क्या हो, एक का फॉर्मेशन हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
while studying the reproduction. So अभी बस इतना ही देख लेते हैं कि रेनी सीजन में ज्यादा करके ब्रीथ करते हैं. मेल फ्रॉग क्या करता है, हाई पिच रॉकिंग साउंड रिलीज करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड द मेल फ्रॉग लैक्स कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, सेक्सुअल एम्ब्रेसेस. द सेक्सुअल एम्ब्रेसेस में मेल फ्रॉग नहीं लैक करता, फीमेल फ्रॉग लैक करती है. एक मिनट, यहाँ पे रहेगा फीमेल. फीमेल फ्रॉग के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, मेल फ्रॉग के पास होता है. The sexual embrace in which the eggs and sperm are discharged in water is called amplexus or false copulation. Okay, it is characteristic of amphibians. देखो amphibians का characteristic ही यही है कि वो लोग जो अपना discharge है sperm और egg का वो water में करते हैं. तो जो discharge, the process of discharge of water, sperms and eggs into the water is called as amplexus or the false copulation. इसका definition अभी तक तो exams में नहीं पूछा है. It can be asked, so you better be prepared. The shedding of oocytes by the female at the end of amplexus is called oviposition. The shedded oocytes and sperm remain embedded in the jelly-like sac called as spawn. हाँ, ये आता है. स्पॉन क्या है, जब फीमेल जो है वो जब एग्स रिलीज करती है तो एग के अराउंड एक पाउच क्रिएट करती है जेली लाइक, ताकि जो उनका एग है वो डिस्पर्स ना हो जाए पानी में. पानी में तो बहुत सारे अमाउंट में है, तो उनका एग्स जो है वो एक पाउच में कनेक्टेड रहे. उससे क्या होता है, वो पाउच जो सैक लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन. फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल. इसका इमेज हमने कौन से चैप्टर, एनिमल किंगडम वाले में मैंने आई थिंक इमेज डाला था. द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फिश लाइक टेल्ड लार्वा tadpoles which respire through gills. It feeds on plant matter, herbivore, and gradually develops into adult frog. अब देखो, usually frog is what? Carnivore. Frog क्या है? Carnivore है. But the tadpole larva क्या है? It is herbivore. Tadpole ये क्या है? Herbivore है. Then frog के पास क्या है? Tailless होते हैं ये लोग. Tailless. Tadpole क्या होते हैं? Tailed होते हैं. ठीक. ये frog क्या करता है? Lungs या skin से respire करता है. Lungs और skin. ठीक है. इसके पास गिल्स भी होता है, लेकिन गिल्स मोस्टली टेडपोल्स क्या करते हैं, सिर्फ गिल्स. क्यों? क्योंकि ये लोग मोस्टली पानी में ही रहते हैं. जब फ्रॉग टेडपोल लार्वा डेवलपमेंट में फ्रॉग में कन्वर्ट होता है या एडल्ट फ्रॉग में बनता है, तभी क्या होता है, लैंड एरियाज में कन्वर्ट होना शुरू होता है, लैंड एरियाज में आना शुरू होता है. अदरवाइज टेडपोल लार्वा बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लिव्स अंडर द वाटर. ओके, जब वाटर में रहेगा तो गिल्स ही रेस्पिरेशन का एक तरीका है. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम टेडपोल लार्वा रेस्पायर थ्रू गिल्स. नेक्स्ट वन इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. दोनों चीज अभी हमने देखा कि करता है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन. फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल है. इट्स बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. सराउंडिंग में जैसे बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा, इसका भी बॉडी टेम्परेचर बदलता है. वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, लाइक बर्ड्स एंड ह्यूमंस, दे हैव द एबिलिटी टू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. लेकिन ये फिशेस या एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग इनके बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है. सो टू अवॉइड द एडवर्स कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, फ्रॉग क्या करते हैं, बरो इनसाइड द सॉइल एंड लाइज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्लीप ड्यूरिंग द समर. समर के स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन. और यही कंडीशन इन विंटर में रहेगा तो हाइबरनेशन. ठीक है, वही सेम चीज दिखा है. सिंपल एस्टिवेशन और हाइबरनेशन इज व्हाट, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, फ्रॉग एक बरो क्रिएट करते हैं इन द लैंड, और उस बरो में जब तक वो कंडीशन ना चला जाए तब तक वो उसी में रहते हैं और स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं. देन डिफेंस. डिफेंस कैसे करते हैं, अपने एनिमी से बाय द कैमोफ्लेज. ठीक है, escape from their enemies by several ways. If chased, they leap away to safe places, jump into water. पहले तो वाटर में जंप करेंगे. They can also darken or lighter their green shade to blend in with the background. ठीक है, बैकग्राउंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज. कलर को चेंज करना है इस कैमोफ्लेज. और कैमोफ्लेज के प्रोसेस ये आता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिमिक्री. अभी ये क्लास 12th में जब आओगे ना एनवायरमेंटल चैप्टर में, तो देयर आर मेनी प्रोसेस बाय विच एनिमल्स आर चेंजिंग देमसेल्फ. मिमिक्री है, शेप चेंज करना, बॉडी का कलर चेंज करना. सो वेरियस थिंग्स आर देयर. सो वन ऑफ देम इज कैमोफ्लेज अंडर द हेडिंग मिमिक्री. तो ओके, एनी डाउट इन दिस मॉर्फोलॉजी वन ऑफ द फ्रॉग, क्या क्या है फ्रॉग का चीज, एनी डाउट? ओके, सो ये तो हम लोग पहले ही देख चुका है. हाइंड लिम्ब और फोर लिम्स क्या होता है, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग और बरोइंग, इन सारी चीजों में यूज होता है. देन अब देखो मेल फ्रॉग्स और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है, कि हम लोग उसको देख के भी बता सकें. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस कि बाय लुकिंग एट देम यू कैन टेल द डिफरेंस. सो मेल फ्रॉग हैव वोकल सैक्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दे हैव कॉपुलेटरी पैड्स ऑन फोर लिम्स. फर्स्ट डिजिट पे, फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे क्या है, देखो ये फोर लिम्ब है, इसके फर्स्ट डिजिट पे दे आर हैविंग व्हाट, कॉपुलेटरी पैड्स. ओके,
ओके मैंने आर्म पे लगा दिया, सॉरी। ये लिम्स वाले पे है, फुट के टाइम पे कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये कॉपुलेटरी पैड होता क्यों है? ये रिप्रोडक्शन के टाइम काम आता है, टू अटैच देमसेल्फ ऑन द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ये फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता, ना उनके पास वोकल सैक्स होता है, ना उनके पास कॉपुलेटरी पैड्स होता है। वोकल सैक्स किस लिए होता है? टू क्रिएट अ वॉइस और टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग और टू कॉल द फीमेल फ्रॉग फॉर द प्रोसेस ऑफ copulation or reproduction. Okay, so these two things are there, vocal sacs and copulatory pads. जब भी तुम फ्रॉग्स को देखोगी you will be able to tell the difference between male frog और female frog. ठीक है, तो मेल फ्रॉग के पास ये दो चीज प्रेजेंट है जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होती है। देन एनाटॉमी में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है फ्रॉग का, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसका रेस्पिरेशन क्या है, नर्वस क्या है, एक्सक्रीटरी, और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द फ्रॉग। पहले ये मॉर्फोलॉजी में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, which we have seen. मॉर्फोलॉजी में अगेन अवॉइड स्ट्रीमलाइन एंड स्लाइटली फ्लैटेंड बॉडी है, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये सब नहीं पूछता। ये स्किन ऑफ फ्रॉग नेकेड है, स्मूथ है, मॉइस्ट और स्लिपरी है। Thin film of mucus is secreted by cutaneous glands present in the skin. Dorsal side of body is generally olive green, darker side with irregular spot, and ventral side is pale yellow. Body of frog divisible into head and trunk, and tail is absent. Tail and neck दोनों ही absent है. This we have covered in the previous slide. Head क्या है? Triangular shape में है, blunt snout है, मतलब कि snout उस पर क्या है? Clear नहीं है. Mouth है, external nares है, eyes है, burrow spots, ear drums है upper side में, and throat on the lower side. क्या क्या चीज है हेड के एरिया में? क्या क्या है? माउथ भी है, नेयर्स भी हैं, आईज भी हैं, ईयर्स भी हैं। ठीक है, देन माउथ में क्या है? एक्सटेंडेड अलोंग द एंटायर बॉर्डर ऑफ द हेड, बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉज। लोअर जॉ में क्या है? टूथलेस है, यानी कि टीथ नहीं है। माउथ गेट्स ओपन बाय ओनली ड्यूरिंग फीडिंग। जब खाना खाना होगा तभी माउथ ओपन होता है, अदरवाइज माउथ ज्यादातर क्लोज ही रहता है। एक्सटर्नल नेयर्स क्या होता है? एंटीरियर इन ए हेड बियर्स टू स्मॉल अपर्चर कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स। ये नेयर्स क्या करते हैं? एयर इंटर्स एंड लीव्स द बॉडी थ्रू दिस नेयर। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है तो ये नेयर्स ही काम आते हैं। आईज में क्या है? नॉस्ट्रिल्स के पीछे दो लार्ज आई प्रेजेंट हैं, साइड में भी प्रेजेंट हैं, एंड दे आर स्फेरिकल एंड बाहर की तरफ उभरे हुए, प्रोट्रूडेड, लिटरली मतलब कि बाहर की तरफ उभरा हुआ। ईच आई हैज थिक अपर एंड थिन लोअर आईलिड्स। आईलिड्स क्या होते हैं? दिस वन which act as a protective covering of the eye. तो इनके पास क्या है? थिक अपर है, अपर वाला थिक है और नीचे वाला क्या है? थिन है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट जरूर होगा। अपर पार्ट ऑफ द लोअर आईलिड इज मॉडिफाइड इनटू ट्रांसपेरेंट फोल्ड कॉल्ड निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इज द यूज ऑफ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन? दिस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द आई। देखो, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज ऑर्गन व्हिच आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बीइंग्स। ये अगर इफ यू क्लोजली लुक इनटू योर आईज, एकदम साइड कॉर्नर में देयर इज अ पिंक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो पिंक लाइक स्ट्रक्चर इज मोर डेवलप्ड इनटू एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। क्यों होता है? सो एज दिस निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन हेल्प देम टू लिव इन द वाटर बॉडीज। अगर हमारे पास भी होता तो वी आर आल्सो एबल टू लिव इन द वाटर बॉडीज एंड इजीली सी। जब हम लोग चश्मा लगा के वाटर बॉडीज में डाइव इन करते हैं, वो ना करते हैं, हमारा आईज ऑलरेडी प्रोटेक्ट रहता विद द हेल्प ऑफ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। सो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर of this amphibian, and it is protecting their eyes in the water bodies and under the mud also. See, under the mud and frog can see through it. So nicktiating membrane is a vestigial organ in the human beings, but it is fully functional in fishes, amphibians or reptiles also. Eardrums, a little behind and below the eye on each side of head, a circular patch of tightly stretched dark skin color is present, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनिक। ये क्या है? साउंड वेव्स। एक्सटर्नल ईयर्स तो होते नहीं है, तो एक जो टिम्पैनम है जो फ्रॉग्स पे प्रेजेंट है, वो क्या करता है? ईयर ड्रम्स की तरह एक्ट करता है। ईयर्स का साउंड वेव जो है वो यही कैच करेगा, टिम्पैनम ओनली। देन थ्रोट, फ्लोर ऑफ द हेड इज ऑक्यूपाइड बाय सॉफ्ट थ्रोट। मेल फ्रॉग में देयर इज अ पेयर ऑफ ब्लूइश रिंकल्ड पैचेस ऑफ स्किन कॉल्ड वोकल सैक्स, और फीमेल फ्रॉग में होता ही नहीं है। दे हेल्प इन इंटेंसिफाइंग द क्रॉकिंग साउंड, मतलब कि जो क्रॉकिंग साउंड निकालते हैं उसको और इंटेंस बनाने के लिए वोकल सैक्स प्रेजेंट है। कहाँ? फीमेल मेल फ्रॉग में। ओके, so morphology is completed. Now we will go to, okay, one more page is there, trunk skin. Okay, this one is smaller. Trunk क्या है? Contains anterior portion called thorax and posterior large portion called see, thorax and abdomen are part of trunk. Pair of forelimb and hind limb trunk में ही attached होंगे। क्यों? क्योंकि पीछे के एरिया की तरफ ही क्या है? हाथ और पैर अटैचमेंट दिया हुआ है, और फिर स्टमक एरिया भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे ट्रंक में। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है? लेट मी सी, ईच हाइंड लिब कंसिस्ट ऑफ अपर थाई। ओके,
थाई भी प्रेजेंट है, मिडिल चैन भी प्रेजेंट है, लोअर फुट भी है, एंकल, सोल, 5 डिजिट्स, द डिजिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फोल्ड ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड वेब। यहाँ इमेज में देखते हैं, ऑल द डिजिट्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस वेब। वेब क्या करता है, जितने भी डिजिट्स है यानी कि फिंगर्स है उसको जॉइन किया रहता है। Then at the end of the trunk between the hind legs there is a circular aperture जिसको cloacal aperture बोलते हैं, which through passes urine and see cloacal aperture in the frogs स्पेशली इन द मेल। ठीक है, तो तीन तीन काम करेगा। अभी हम लोग एक्सक्रीशन वाले में भी देखेंगे, डाइजेशन वाले में भी देखेंगे, रिप्रोडक्शन में भी। सो ये क्लोकल अपर्चर क्या है ना, एट द एंड ऑफ द हाइंड लिम्स रहता है। तो इसमें क्या होता है, जब यूरिन पास करेगा मेल फ्रॉग तब भी क्लोकल अपर्चर के थ्रू होकर जाएगा, जब गैमीट रिलीज करेगा तब भी क्लोकल अपर्चर के थ्रू होकर जाएगा, और जब कोई एक्स्ट्रा फीकल मैटर रिलीज करना होगा तब भी क्या होगा, क्लोकल अपर्चर के थ्रू ही बाहर के एनवायरमेंट में रिलीज होगा। सो ऑल द थ्री प्रोसेस के लिए क्या यूज होता है, क्लोकल अपर्चर। कहाँ पे, मेल फ्रॉग्स में। सिमिलरली फीमेल फ्रॉग्स में भी क्लोकल अपर्चर यूज करता है एक्सक्रीशन में भी और गैमेट रिलीज के लिए भी। सो दोनों मेल और फीमेल फ्रॉग में क्लोकल अपर्चर है जो कि 3-4 काम एक साथ करता है। ठीक, देन स्किन ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिडर्मिस और इनर क्या है, डर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, नॉन वैस्कुलर लेयर है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का बना है। इसमें कंसिस्ट ऑफ मैक्यूलस स्टेटन dermis layer consists ये mucus gland and poison gland. Some frogs are poisonous also. So उसमें वही यही है, कहाँ पे है, dermis layer में ही mucus gland और poison gland present होते हैं। This poison gland secrete poisonous fluid which protects the frog from their enemies. Frog never drinks water but absorb it through the skin. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एनाटॉमी में क्या क्या है, अब यही स्टार्ट हो जाएगा एनाटॉमी। देखो, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एक्टिवेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ये सारा हमने देख लिया कि क्या क्या अभी हमें पढ़ना है। डाइजेशन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, सारा चीज किसका पढ़ना है, फ्रॉग का। देन सीलम आता है, द बॉडी कैविटी इज अ ट्रू सीलम। इंटरनली हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनका बॉडी कैविटी क्या है, ट्रू सीलम है। ट्रू सीलम एक तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि वर्टिब्रेट से स्टार्ट हो जाता है, वर्टिब्रेट से पहले ही वर्टिब्रेट्स में ट्रू सीलम स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रू सीलम है, हैविंग two parts, very small pericardial cavity around the heart which contains pericardial fluid and large peritoneal cavity around other viscera, maxillary fluid except the kidneys. So this ये काम का नहीं है। Both the fluids are watery color secreted peritoneum. सीलम में बस इतना याद रख लो, this point, the body cavity is true सीलम and having large two parts, ये वाला बस, pericardial and peritoneum। Next is digestive system। यहाँ पे भी मैंने morphology लिखना है, एनाटॉमी में ये क्या है, एनाटॉमी। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, इंग्लिश स्लाइड आई हैव रिटन, या क्योंकि मैं फीचर्स नहीं है दिस वन। यस, सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहले आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ग्लैंड है, इनके पास लीवर भी है, गैल ब्लैडर भी है, पैनक्रियाज भी है। सो जितना जितना हमारे पास है इन कंपैरिजन टू अस या ह्यूमन बीइंग, इनके पास थोड़ा थोड़ा चीज है। मतलब कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर हैविंग मोर थिंग्स देन द अर्थवर्म और कॉकरोच, बिकॉज इन दिस चैप्टर अर्थवर्म एंड कॉकरोच वाज आल्सो देयर इन स्टडीज। सो फ्रॉग इज हैविंग अ ग्रेटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गन्स इन कंपैरिजन टू कॉकरोच एंड अर्थवर्म। नाउ फ्रॉग एम्फिबियंस की तरफ यानी कि इवोल्यूशन में ज्यादा ऊपर है, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग मोर थिंग्स। नाउ क्या क्या है, लीवर है, सीक्रेट्स बाइल, स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, पैनक्रियाज है जिससे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और उससे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। देन एलिमेंट्री कैनाल क्या है, शॉर्ट है बिकॉज एडल्ट फ्रॉग्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। जस्ट लेट मी ऐड द पिक्चर्स हियर फर्स्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू ऐड द पिक्चर्स फर्स्ट। पिक्चर्स, नाउ इट इज अ टाइप। सो this is what digestive system complete one. So they are having gallbladder here, they are having kidneys, or kidneys are in the excretory system, so not going to be, see, they are having gallbladder, then liver, and they are having the pancreas also. So each and everything is well developed in what, digestive system of frog. Now what is the alimentary canal, see, alimentary canal is short why, because they are carnivorous animals and देयर डाइजेशन, फूड कैसे इंटर होता है कैसे आउट होता है, तो माउथ, सबसे पहले तो खाना कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। देन द फूड मूव्स इनटू द बक्कल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, साउंड सिस्टम क्रिएट करने के लिए फेरिंग्स होता है, रेस्पिरेशन में आता है। देन ईसोफेगस क्या है, शॉर्ट ट्यूब होता है। देन थ्रू द ईसोफेगस द फूड मूव्स इनटू द स्टमक, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस अपना काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। देन अनवांटेड मटेरियल कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में, बचा कुचा चीज भी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन
रेक्टम, रेक्टम के थ्रू क्या हो जाएगा, क्लोका में ओपन होगा. देन दिस क्लोका विल ओपन इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड रिलीज द फीकल मैटर और द यूरिन इनटू द एनवायरनमेंट. सो ये क्या है, पूरा प्रोसेस है इसका फ्रॉग का, फूड सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स. ओके, सो क्लोका देखा कैसे कैसे डिवाइडेड है. 3 काम करता है, कौन कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एंड रिप्रोडक्शन का. पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि 3 काम है क्लोका के. डाइजेशन में क्या है कि जब भी जो फूड होता है, whenever the food gets entered into the mouth and it gets digested with the help of this rectum, and the unwanted product through the rectum moves into the cloaca only, and cloaca के थ्रू ही unwanted product कहाँ जाता है, environment में, मतलब कि बाहर की तरफ रिलीज किसके थ्रू होगा, क्लोका के थ्रू. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी क्या है, जो वाटर है विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, वो भी क्या होता है, यूरिन के फॉर्म में ओपन कहाँ होता है, क्लोका में, एंड देन क्लोका विल ओपन इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अभी तुम देखोगी कि जो हमारा मटेरियल है रिप्रोडक्शन का, लाइक स्पर्म्स, गैमेट्स, जिसमें स्पर्म और एग दोनों आएंगे, मेल एंड फीमेल दोनों में ही क्लोका के थ्रू ही एनवायरनमेंट में रिलीज होता है. एनवायरनमेंट अगेन इन द वाटर बॉडीज. ठीक, सो क्लोका का क्या है, 3 मेन फंक्शन है विच यू हैव टू रिमेम्बर कि क्लोका इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द फ्रॉग बॉडीज. सो यहाँ पे भी देख लेते हैं, फूड रिलीज जाएगा. देखो ये है, दिस वन इज द क्लोका पार्ट. ये क्लोकल अपर्चर है. क्लोकल अपर्चर कहाँ से खुलेगा, कोई भी चीज देखो, इधर भी ये यूरेटर है, ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कहाँ हो रहा है, क्लोका में भी खुल रहा है. देन ये अभी यू विल सी, ये फीमेल का जो ये पार्ट है, दिस वन इज, इस पाथवे से होकर फीमेल अपना एग भी कहाँ रिलीज करेगी, इस क्लोका में ही. फिर क्लोकल अपर्चर से ही खुल के क्या होगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाएगा. सो दिस वन क्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. डाइजेस्टिव सिस्टम. देन जो ये फ्रॉग है उसमें क्या है, एलिमेंट्री कैनाल छोटा है एडल्ट फ्रॉग में, बट टेडपोल लार्वा में देखो, फ्रॉग लार्वा में हर्बीवोर है इसलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल बड़ा है. हर्बीवोर्स में क्या होता है, देयर आर मेनी अदर, सिंस दे ईट वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स मटेरियल, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा बड़ा होता है टू रिलीज डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स. बट कार्निवर्स, फ्रॉग कार्निवर है, तो उसको ऑलरेडी आधा चीज क्या होता है, अब्सॉर्ब फॉर्म में है, इसीलिए इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, छोटा है. देन कमिंग बैक टू दिस वन, डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग शॉर्ट होता है, कार्निवर्स है, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाता है. कंटेन्स क्या क्या, माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोका. इसी डायरेक्शन में मूव भी करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी खाना जाएगा तो. देन माउथ क्या है, प्रेजेंट एज अ वाइड ओपनिंग which opens into बक्कोफेरेंजियल कैविटी. कहाँ पे ओपन होगा माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, फिर वहां से कहाँ जाएगा, इसोफेगस में. Teeth are not used for chewing, but they prevent the escape of live food. Okay. Mouth opens into buccal cavity that leads into proteins. Esophageal through pharynx. कहाँ से जा रहा है, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा, इसोफेगस में. इसोफेगस क्या है, नैरो है, शॉर्ट ट्यूब है, विच कंटिन्यूज इन लार्ज एंड डिस्टेंडेड स्टमक. अब देखो जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है माउथ, देन फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. सेम वे देखो कॉकरोच, सॉरी फ्रॉग्स में भी वही चीज है. माउथ में आ रहा है, फिर फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस में आएगा खाना, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा फूड एंड मिनरल्स का, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, क्लोकल अपर्चर में जाएगा, यानी कि क्लोका के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होगा. सो स्टमक में क्या है, हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द फूड इनटू काइन. काइन क्या होता है, बेसिकली काइन इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन चिव्ड फूड का स्ट्रक्चर उसको मिला के along with the saliva, along with the salivary amylase enzyme, so many things act together and then they form a ball like structure, chyme. ठीक है, उस chyme में से secretion होता है and secretes juice containing HCl and proteolytic enzyme. Then intestine क्या है, coil structure है, continues with the stomach. Intestinal wall has several finger like pores, villi and microvilli. Villi and microvilli का काम क्या होता है, they increase the surface area for absorption. तो यहाँ पे भी फ्रॉग में भी क्या होगा, absorption of more and more food materials. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जितना उसको absorb करते हैं. देखो उसमें आगे लिखा गया होगा, प्रोजेक्टिंग इनटू ल्यूमेन एंड एनहांस द सरफेस एरिया फॉर absorption of digested food. जितना ज्यादा फूड का डाइजेशन होगा, मतलब डाइजेस्टेड फूड का absorption होगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, प्रोटीन और एनर्जी फ्रॉग को मिलेगी. Then first part of the small intestine lying parallel to stomach is called duodenum. Duodenum is followed by ileum. Then small intestine continues into wider rectum which opens into a cloaca. ठीक, क्लोएका में ओपन हो जाएगा.
Then urinary bladder opens into cloacal chamber through ureter. The cloaca opens externally by cloacal aperture. This aperture serves both as an anus and urinogenital port. देखो किसके थ्रू काम कर रहा है, दोनों के थ्रू. एनस के भी थ्रू काम करेगा, यूरिनोजेनिटल अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखोगी तो वाटर यानी कि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, क्लोकल अपर्चर के थ्रू ही रिलीज होगा. अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या है, इंक्लूड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास. पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. देन लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में. बोथ द फ्लूइड्स आर वाटरी, कलरलेस एंड सीक्रेटेड बाय ब्लैडर बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम. पैंक्रियास क्या होता है, वी नो दैट दीस आर इरेगुलर एंड इलोंगेटेड ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं और अलोंग विद द पैंक्रियाटिक जूस बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं. For what purposes? For the digestion of food, okay, and for absorption of food also pancreas helps in secreting many of the enzymes. Then digestion of food कैसे होता है, digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach. जैसे ह्यूमंस में हो रहा है सेम वही चीज, गैस्ट्रिक जूस और HCl को रिलीज कर रहे हैं स्टमक में और उसके थ्रू क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है. The partially digested food called chyme is passed from stomach into the first part of intestine, the duodenum. अब देखो अभी तो पूरा डाइजेशन हुआ नहीं है, अब क्या होगा जब उसमें जाएगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड अदर थिंग्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द स्टमक, in the intestine area. In the intestine, the absorption of digested food material takes place. Then the duodenum receives the bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct. Bile emulsifies fat and pancreatic juice digests carbohydrate and protein. अब देखो जो भी खाना वो खाया है वो इंटेस्टाइन में किस किस के थ्रू हो रहा है, जो डिओडेनम है वो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करेगा और यही दोनों चीज क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं. एंड दीज टू थिंग्स आर हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. Then final digestion भी intestine में ही होगा. Duodenum is a part of intestine only. Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds, क्या जिसके हम लोग बोलते हैं microvilli and villi. The undigested solid waste moves into rectum and pass through cloaca. अब respiratory system क्या है? It is most important topic here, ठीक है? Because frog is the only animal that respires through skin also, through buccopharyngeal cavity also, through lungs also, and through gills also, ठीक है? So cutaneous respiration through the skin, respire only by the skin under the water or deep under the mud. जब burrowing का टाइम आता है यानी कि hibernation या aestivation, तो ये cutaneous respiration most active रहता है. In buccopharyngeal respiration occurs when the animal is on land and partially immersed in water. It occurs by thin vascular moist lining of buccopharyngeal cavity. सिर्फ एक यही फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो buccopharyngeal cavity से भी क्या करता है, respiration करता है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. देन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये तो सभी मतलब ह्यूमंस भी करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन occurs by lungs and is less frequent than the cutaneous and buccopharyngeal respiration. It occurs when more oxygen is required. जब लैंड पे ज्यादा देर तक रहते हैं फ्रॉग तब वो लोग क्या यूज करते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं. देन द लंग्स आर पेयर ऑफ elongated pink colored sac like structure, ये तो सबको पता है, thorax में है. Then air enters through the nostril into the buccal cavity then into the lungs. डीप निकलो, गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है. गिल्स के थ्रू कहाँ मोस्टली इंस्पायर करते हैं, मोस्टली यूज्ड बाय tadpoles, tadpole larva. Tadpole larva are also what? They are also a kind of frog. So gills are also a part of respiratory system in the frogs. Then comes what is circulatory system. Okay, let me see. Alimentary canal, finally cloaca, digestion of food. Okay, I haven't absorption of food, digestion of food. मैंने स्लाइड पे थ्रू तो समझा दिया. ओके, सी अभी जो हमने स्लाइड में देखा यहाँ पे भी फिर से देख लेते हैं बिकॉज आई हैव रिटन पॉइंट्स. इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर. क्या क्या है, टंग्स, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली टीथ का इस्तेमाल तो करते नहीं है फ्रॉग, सो दे कैच देयर प्रे विद हेल्प ऑफ टंग ओनली. टंग का सिस्टम क्या है, बाइलोब है यानी दो लोब्स प्रेजेंट हैं. फूड को लिए, वो फूड क्या कहाँ गया, स्टमक में गया. अगेन द सेम प्रोसेस, HCl और गैस्ट्रिक जूस एक्ट करेगा इन द स्टमक एंड दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ काइम एंड दे विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स. देन काइम क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ओनली, ठीक. तो उस ड्यूडेनम में क्या होता है, बाइल डक्ट बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. बाइल फैट को अब्सॉर्ब करेगा और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन और क्या कहते हैं, मिनरल्स को. ओके, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. तो इन सबका अब्सॉर्प्शन करेगा. देन फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में आके क्या हो जाएगा, जो
एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, वो इंटेस्टाइन में हो जाएगा, एंड the unwanted particles will release into the cloaca and will move into the environment with the help of cloacal aperture. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वही चीज है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, विलाई एंड माइक्रोविलाई के थ्रू, इजेशन में वही चीज क्लोकल अपर्चर के थ्रू पास हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी बताया, इन वाटर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लैंड में बक्कल कैविटी भी है, लंग्स भी है, यहाँ पे गिल्स भी लिख लो, गिल्स ओनली बाय किसके, टेडपोल लार्वा। सो रेस्पिरेशन इज डन एक्सक्रीटरी, यहाँ पर देखो ना सर्कुलेटरी सिस्टम, या वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम देखो फ्रॉग्स का भी वेल डेवलप्ड है, एंड दीज आर क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मींस कि दे हैव वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, जिसमें lymphatic system is also there, blood vascular system is also there, and blood flows in a closed cavity inside the veins. ओपन सिस्टम कॉकरोच और अर्थवॉर्म में है, जहाँ पे वेन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ओपनली ब्लड फ्लो करता है, बट हियर फ्रॉग इज हैविंग द वेन सिस्टम, यानी कि आर्टरीज वेन्स दोनों हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ वेल डेवलप्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। नाउ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में देखो हार्ट प्रेजेंट है, इनका हार्ट कितना चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्रॉग्स। 3 चैम्बर्ड में क्या क्या आएगा, 2 आर्टरीज एंड 1 वेंट्रिकल्स। ओके, 2 आर्टरी रहेगा और 1 वेंट्रिकल रहेगा। इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, लिम्फ चैनल भी प्रेजेंट है, लिम्फ नोड भी प्रेजेंट है, जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, पंपिंग ऑफ मस्कुलर हार्ट, सेम द प्रोसेस ऑफ लाइक द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब हार्ट क्या है, इज क्रिएटेड इन द अपर बॉडी कैविटी पार्ट, अभी इस फिगर में हमने देखा था ना, यहाँ पे इसी में देखो ये अपर बॉडी पार्ट्स में क्रिएटेड है, ठीक। यस, 3 चैम्बर है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, कवर्ड बाय किससे, पेरिकार्डियम। हार्ट की कवरिंग का जो लेयर है इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस, सब में हार्ट की जो कवरिंग है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। ट्रायंगुलर साइनस वेनोसस प्रेजेंट है राइट एट्रियम में, ट्रायंगुलर साइनस वेनोसस या वीनस, ये क्या करता है, राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, एंड इट रिसीव ब्लड कहां से, मेजर वेन्स जहां से होते हैं, यानी कि वेना कावा। वेना कावा से कौन रिसीव करता है ब्लड, साइनस वेनोसस करता है, और ये कहाँ जाता है ब्लड, राइट एट्रियम में जाता है। देन देखो आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम क्या क्या करते हैं, तो आर्टरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तो सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए आर्टरीज और वेन्स का काम क्या है। तो आर्टरीज डज व्हाट, दे टेक द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स क्या करते हैं, सेम उल्टा करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके जाएंगे, ठीक। सो आर्टरीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, सेम ऐसे जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है। यहाँ पे लिख भी लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और ये क्या करते हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमंस में तो एक्सेप्शन भी है एक। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एक्सेप्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें आर्टरीज अपोजिट करते हैं, वेन्स अपोजिट काम करते हैं, सना और फायका। देयर इज 1 वेन एंड 1 आर्टरी व्हिच डज द अपोजिट, नेम देम। ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स pulmonary artery and pulmonary veins are there. See, basically vein क्या करता है, deoxygenated blood को कैरी करता है, but pulmonary vein oxygenated blood कैरी करता है, ठीक है, oxygenated blood। And same way arteries का काम क्या है, oxygenated blood को कैरी करना, but pulmonary artery क्या करता है, deoxygenated blood कैरी करता है, deoxygenated blood. So this is an exception in human beings. Okay, I have happened to remember this point. So where was I? Arterial and venous system of frogs. So arterial system carries the blood from the heart to all parts of the body, means क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, आर्टरीज ऑफ द फ्रॉग्स। एंड सेम वे वेन्स ऑफ द फ्रॉग क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं और उसको हार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। वेंट्रिकल्स कहाँ ओपन होते हैं, दे विल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस। कहाँ ओपन होते हैं, कोनस आर्टेरियोसस, यू हैव टू लर्न दिस वन। वेंट्रल साइड के कोनस आर्टेरियोसस पे ओपन होते हैं और वहां पे क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पे लेके जाते हैं। देन कोनस आर्टेरियोसस से भी कहाँ जाता है, वी विल सी। स्पेशल वेनस कनेक्शन भी है। पोर्टल सिस्टम में देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है, रीनल पोर्टल सिस्टम है। रीनल मतलब जहाँ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हेपेटिक मतलब कि जो डाइजेशन से रिलेटेड हो, समझ लो लीवर या इंटेस्टाइन से। सो इसमें वीनस कनेक्शन भी दिया है, जैसे ह्यूमन में होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ह्यूमंस में तो और एडवांस एक और है, हेपेटोपोर्टल कनेक्शन है क्या समथिंग। सो यहाँ पे 2 पोर्टल कनेक्शन है वीनस का, एक तो हेपेटिक पोर्टल कनेक्शन, दूसरा रीनल पोर्टल कनेक्शन। हेपेटिक वाला
हमेशा डाइजेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, रीनल वाला हमेशा एक्सक्रीशन से जुड़ा रहेगा। तो ऐसे याद रख लो। तो रीनल में क्या आ जाएगा, किडनी और लोअर बॉडी पार्ट, एंड उसमें हेपेटिक वाले में क्या आ जाएगा, जब डाइजेशन से जुड़ा है तो इट विल कम इनटू द इंटेस्टाइनल लीवर पार्ट। देन ब्लड सेल्स, कौन कौन से ब्लड हैं, तीनों ही हैं, रेड ब्लड भी है, व्हाइट ब्लड भी है और ब्लड प्लेटलेट्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स सेम वे, इरिथ्रोसाइट्स, देखो एक डिफरेंस है, ह्यूमन का ब्लड सेल्स क्या होता है, अनन्यूक्लिएटेड होता है, बट यहाँ पे क्या है, फ्रॉग्स का ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स है वो न्यूक्लिएटेड है। अगेन हीमोग्लोबिन भी है इनके ब्लड सेल्स में। देन व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो देयर एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो देयर। अब ब्लड क्या है, it carries nutrients, gases and water to the respective sites during circulation, same way as in human। जैसे ह्यूमन में न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वाटर को या अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेम वे फ्रॉग्स में ही ब्लड ही कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट एंड गैसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ब्लड सेल्स कवर हो गया, स्पेशल वेनस कनेक्शन कवर हो गया, सिचुएटेड इन अपर बॉडी पार्ट्स। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, अभी हमने बताया क्लोज टाइप है क्योंकि इसके पास वेन्स प्रेजेंट है। लिम्फेटिक सिस्टम भी डेवलप्ड है, लिम्फ, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देन इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। हार्ट कैसा है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, सिचुएटेड कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, 3 चैम्बर्ड है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम। देन 2 एक्सेसरी चैम्बर्स ऑफ फ्रॉग्स, ट्यूबुलर ट्रंकस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड, जहाँ पे क्या खुलता है, वेंट्रल्स खुलेंगे। ठीक है, राइट ऑरिकल एंड ट्रायंगुलर सीनस वेनोसस पार्ट प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। देखो ऐसे। ओके, तो एक तो ये वेंट्रिकल पूरा है, दूसरा ये एक आर्टरिया है, ये लेफ्ट वाला, ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम, और ये पूरा वेंट्रिकल है। तो इसमें बोल रहा है कि जो वेंट्रल साइड ऑफ द राइट ऑरिकल है, या मतलब कि इस साइड पे, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, ट्रंकस आर्टेरियोसस, और दूसरा क्या है, साइनस विनोसस। यहाँ पे ट्रायंगुलर साइनस विनोसस प्रेजेंट है, कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे। तो ये आगे डॉर्सल साइड यानी कि लेफ्ट एट्रियम वाला आगे की तरफ प्रेजेंट होगा, एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस राइट एट्रियम के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, साइनस विनोसस रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा एंड ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल। देखो साइनस विनोसस कहाँ है, ये वाला है, तो ये क्या कर रहा है, मेजर जो वेन है यानी कि वेना कावा, यहाँ पे इसके यहाँ पे वेना कावा भी होगा, तो वहां से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, बट ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय कॉमन पल्मोनरी वेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे ट्रांसफर होगा, राइट एट्रियम में होगा, फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल्स में से सारा ब्लड कहाँ होता है, ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और फिर यही वेंट्रिकल से, जो अभी हमने पढ़ा कि वेंट्रिकल से थ्रू एक और वो होता है ना, ये कोनस आर्टेरियोसस। सो ये कोनस आर्टेरियोसस पास होके कहाँ जाते हैं, वेना कावा में। अगेन वेना कावा से लंग्स की तरफ जाएंगे, जहां से क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। फिर सेम वही प्रोसेस, वहां से राइट लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में, फिर वहां से साइनस कोनस आर्टेरियोसस, फिर वहां से लंग्स, लंग्स से फिर वही सेम प्रोसेस। तो ऐसे होता है ब्लड का ट्रांसपोर्ट इन द फ्रॉग्स। Send their blood into ventricles where the blood gets mixed up, ventricle open into sac-like structure, like conus arteriosus on the ventral side of the heart. Then venous connection क्या क्या है, देखो present in the fronts. Corner is called hepatic portal system and lateral is called renal portal system. ये excretion से जुड़ा हुआ है, renal one excretion से, और hepatic वाला digestion वाले से। Blood vessel क्या क्या है, arteries भी हैं, then venules और blood capillaries, तीनों चीजें हैं। Arteries carry blood from the heart to different body parts, and veins bring blood from different body parts to the heart. Arteries further divide to form arterioles, then arterioles, capillaries। ये तो हमने पढ़ा है कि जितने arteries और ventricles हैं उनका joining point क्या है, capillaries है। तो उन capillaries से क्या होता है, further branching होता है, and ये capillary क्या है, act as a junction between arteries and veins। Okay, then blood क्या है, composed of plasma and blood cells like humans, तीनों ही blood cells है, red blood cells, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट है। इनका रेड ब्लड सेल्स देखो न्यूक्लिएटेड होता है, एक पॉइंट ये याद रखना, ह्यूमंस में अनन्यूक्लिएटेड होता है रेड ब्लड सेल्स। कंटेन रेड कलर पिगमेंट जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड है। देन इट इज मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू फिल्टर्ड आउट फ्रॉम ब्लड थ्रू कैपिलरीज। देन लिम्फ में देखो कैसे फ्लो करता है, लिम्फ कैपिलरीज में जाता है, देन लिम्फ साइनस में जाता है, देन लिम्फ हार्ट्स में जाता है, एंड देन वेन्स में ट्रांसफर होता है। वेन्स का उतना, लिम्फेटिक सिस्टम को उतना नहीं पूछता जितना सर्कुलेशन का पूछता है, यानी वेस्कुलर सिस्टम का। सो एनी डाउट टिल नाउ, देन आई विल स्टार्ट द एक्सक्रीटरी सिस्टम।
If you both are there, you can speak. पूरा Hello, ma'am. Okay. So पूरी क्लास का टाइम बीत गया, but none of you have spoken any word. So that's why I'm asking. Any doubt till now? Because अब 2 ही 3 पॉइंट बचा है, एक्सक्रीशन, नर्वस और ये पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके, एंड देन एक्सक्रीटरी पार्ट देखते हैं क्या है. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, यस, इजी ही है थोड़ा. इसके डाइजेशन वाले पॉइंट से तो इजी ही है. देखो, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो ब्लड के थ्रू रिलीज हो जाता है. कहाँ? किडनी में. किडनी में अगेन फिल्टर आउट होते हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और जो एब्जॉर्प्शन मटेरियल है वो किडनी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो सेपरेट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक, एक्सक्रीट आउट कहाँ होगा? क्लोका में जाएगा और क्लोकल अपर्चर के थ्रू बाहर आ जाएगा. ठीक, सो क्या क्या प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी है, पेयर ऑफ किडनीज है. कैसे हैं? कॉम्पैक्ट है, डार्क है और बीन लाइक स्ट्रक्चर, सेम जैसे ह्यूमन बींग्स में रहते हैं, बीन लाइक. ठीक, फिर क्या है? यूरेटर्स भी हैं एंड क्लोएका. क्लोएका, ठीक, एंड यूरिनरी ब्लैडर. 4 चीज है. 4 main things are there which are the excretory system of frogs. One is kidney, other is ureter, other is cloaca, and the fourth one is urinary bladder. ठीक है, सब कुछ खुल के कहाँ जाएगा? आखिर में क्लोएका नहीं आएगा. तो फिगर देख पाते हैं. कहाँ था फिगर? फिगर इस वाले में था. यस, देखो, किडनी से जो भी फिल्टर होकर जाएगा वो यूरेटर में जाएगा. फिर यूरेटर से कहाँ जाएगा? ये यूरिनरी ब्लैडर में. देखो, यूरिनरी ब्लैडर ओपन आउट कहाँ हो रहा है? अगेन ये क्लोएका में. फिर ये क्लोएका कहाँ जाएगा? क्लोएकल कल्चर के थ्रू बाहर. तो सेम सब कुछ क्लोएका के थ्रू ही बाहर रिलीज आउट होगा. Whenever question is asking about writing any of the excretory part of the frog, so you start writing like this: the excretory system of frog is well developed and it contains following four figures or 4 organs: pair of kidneys, then ureters, then cloaca and urinary bladder. And you have to define 2 or 3 lines in each of them. Okay, so pair of kidneys are what? They are compact and they are dark brown and they are bean-like shaped, and अनवांटेड प्रोडक्ट्स या जो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? किडनी में जाता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट. देन किडनी एक्ट्स अपॉन विद हेल्प ऑफ मैक्रीजन ट्यूबुल्स एंड separation of the first is absorption of the particles are done in the kidney. After that, unwanted products are released from the kidney into the ureters. Then ureter से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. फिर यूरिनरी ब्लैडर से वो कहाँ जाएगा? क्लोएका में जाएगा. क्लोएका के थ्रू क्लोएका अपर्चर के थ्रू बाहर आ जाएगा. ठीक, सो सबसे पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, एंड देन दिस वन विल कम एट 4. ठीक, ऐसे आता है. किडनी, देन यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन क्लोएका. ठीक, देन अब देखो कैसे कैसे डिफरेंस है मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में एक्सक्रीशन के रिस्पेक्ट में. सेम थी होगा, बस 1-2 प्रोसेस में डिफरेंस है. देखो, 2 यूरेटर किडनी के थ्रू दोनों यूरेटर्स में जा रहा है, यहाँ पे भी दोनों यूरेटर्स में ही जा रहा है. यहाँ पे क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सीधे ओविडक्ट है. यूरिनोजेनाइटल डक्ट में दोनों ही चीज आते हैं, गैमेट्स भी दिखेंगे, यूरिन भी दिखेंगे. कहाँ पे? मेल फ्रॉग के सिस्टम में. ठीक है, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है मेल फ्रॉग का, इट एक्ट एज बोथ. इट एक्ट एज गैमेट कंटेनिंग ऑर्गन ऑल्सो, इट एक्ट एज यूरिन कंटेनिंग ऑर्गन ऑल्सो. एंड यही यूरिनोजेनाइटल डक्ट का हो जाता है क्लोएका में ओपन हो जाता है. फीमेल में क्या है? यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में. ओविडक्ट क्या है? जो गैमेट कंटेन किए हुए हैं. फिर सेपरेटली क्या हो जाता है? क्लोएका में ओपन हो जाता है. तो बस यही बीच में डिफरेंस है कि जो मेल वाला है उसमें डक्ट और यूरिन दोनों ही काम करते हैं, और फीमेल वाले में क्या है? सिंपली जो गैमेट है वो ओपन हो जाता है, ओविडक्ट ही क्लोएका में ओपन हो जाएगा. अब यहाँ से नर्वस सिस्टम आएगा, तो पहले हम लोग स्लाइड देख लेते हैं. स्लाइड. Excretory system: elimination of nitrogenous wastage carried by well developed excretory system. Most of the things of frogs are well developed. That is why we sometimes use it as a practical study. Then excretory system consists of kidney है, ureter है, cloaca है और urinary bladder है. Kidney क्या है? Compact है, dark है, red है, bean shaped like structure है. कहाँ situated है? Posterior part में, body cavity on the both side, दोनों साइड में present है. Each kidney composed है किससे? Several structural unit, uriniferous tubule या nephron. जैसे ह्यूमंस में होते हैं पर्टिकुलर यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, किडनी का भी, फ्रॉग में भी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट. ईच नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. बोमैन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, कॉइल होता है, यूरिनरी ट्यूबुल होता है, यहीं पे क्या होता है? फिल्टरेशन आउट होता है. यूरिनरी ट्यूबुल opens into transverse collecting tubules which ultimately communicate with the ureter or urinogenital duct. Okay. फीमेल्स में वही चीज है, यूरेटस और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन हो जाते हैं. क्लोएका में थिन वॉल्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है? रेक्टम के वेंट्रल साइड में, और ओपन कहाँ होगा? डायरेक्टली क्लोएका में ही. फ्रॉग देखो एक्सक्रीट आउट करता है क्या? यूरिया एक्सक्रीट आउट करेगा तो क्या हो जाएगा? एनिमल. तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रॉग क्या है? इट इज अ यूरियोफिलिक एनिमल.
एक्सक्रीटिव वेस्टेज क्या हो जाता है, ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, जहाँ पे सेपरेट होके वही सेम प्रोसेस क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, आई थिंक दिस मच फॉर टुडे। बाकी बचा है नर्वस इंटरग्लाइन और फर्टिलाइजेशन। एनी डाउट इन टुडेज क्लास? नो मैम। Okay. See, this chapter is very easy and सिर्फ फ्रॉक का पार्ट ही है, तो in the test part, I will combine two chapters. This chapter SOA and the next which I will teach is biomolecules. So in दोनों को मिला के ही I will take test. Okay? Because this one is a short chapter. Okay then, you both may leave. That's all for today. Bye.